ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جمعے کو ہم نے اس عبارت کا پڑھا تھا، ایک منٹ، ہاں جی، یہ یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، سنن الطہارہ اور الی الثلاث، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ تو پہلے تو یہ پچھلی عبارت کوئی پڑھ کے سنا دے، یہاں سے سنن و سنن الطہارتی، کوئی بسم اللہ کریں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ اچھا، غلام مصطفیٰ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی استاد، الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ۔ ماشاء اللہ، آپ پڑھیں ذرا یہاں سے، اور عبارت پڑھنی ہے، زبر زیر کوئی نہیں چھوڑنی، سارا کچھ ظاہر کرنا ہے۔ آپ پچھلی کلاس جی میں تھے؟ استاد جی استاد جی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، پڑھیں یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسنن الطہارۃ غسل الیدین قبل ادخالہم الاناء ہاں، قبلہ، ادخالہم الاناء ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ثلاثا جی۔ اذا استيقظ المتوضئ من ہاں، نومه، یہ کیا پڑھنا ہے؟ استیقی، اذا کاف کے نیچے زیر پڑھنا ہے کہ زبر؟ قاف کے نیچے یہ کیا پڑھنا ہے؟ اذا استيقظ کے اذا استيقظ؟ زبر ہے، اذا استيقظ المتوضئ ٹھیک ہے من نومه، جی۔ وتسمیۃ اللہ تعالی ہاں جی، فی ابتداء الوضوء ہوں والسواک والمزمزۃ ہوں والاستنشاق ہوں ومسح الاذنین کیا؟ ومسح الاذنین، نہ ٹھیک ہے، ہاں کے ٹھیک اوپر ہے، زبر، ومسح الاذنین، یہ بلکہ یہ تو بن پڑھنا ہے گئے ہاں کے اوپر، یہ زیر پڑھیں گے، ومسح الاذنین، زیر پڑھیں گے۔ ہاں جی، اور کوئی زیر پڑھیں گے کہ کیا پڑھیں گے؟ پیش پڑھیں گے مسح الاذنین۔ اذنین، اچھا، کیا نام ہے غلام مصطفیٰ صاحب، آپ زیر کیوں پڑھ رہے تھے؟ مثلا آپ کے ذہن میں کیا وجہ تھی زیر پڑھنے کی؟ مضاف علیہ، مضاف الیہ تو یہ نا، مضاف الیہ کے نیچے زیر ہوتی ہے، یہ اذنین، مضاف پر تو زیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ مسحول، ہاں، اور ہو کیوں پڑھیں گے؟ مسحو کیوں پڑھیں گے؟ جو پڑھا ہے اس کی وجہ تو پتہ ہونی چاہیے نا۔ خبر، یہ اس کی ہے، یہ معطوف زندہ باد، ٹھیک ہے، خبر ٹھیک ہے، بھی پہنچ ہے، گئے، پہنچ گئے آپ۔ معطوف بھی ہے، یہ واو حرف عطف ہے نا، جی جی، تو یہ ہے معطوف ہے، معطوف کس کے لیے؟ یہ بل استنشاقو ہم نے رفع پڑھا ہے تو اس پر بھی رفع ہی پڑھنا ہے، مسح الاذنین۔ ہاں جی آگے، ومسح الاذنین وتخلیل اللحیۃ ہاں والاصابع ٹھیک ہے، وتکرار الغسل الى الثلاث، غسل الى الثلاث، 3 دفعہ نہانا ہے؟ غسل، وتکرار الغسل، ہاں 3 مرتبہ دونوں تکرار ہے، الى الثلاث، الى الثلاث، الثلاثی، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا،
خواتین میں سے کوئی نمائندگی کر لیں، کوئی جو پڑھ سکیں. یہاں سے دوبارہ یہ عبارت پڑھنی ہے سارے اعراب ظاہر کر کے. جیسے یہی والی دوبارہ پڑھنی ہے. جی جی یہی دوبارہ پڑھنی ہے، اور جو پڑھنا ہے اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ نے غلط پڑھی تو پھر میں پوچھوں گا، آپ صحیح پڑھیں گے تو نہیں پوچھیں گے. ہاں جی جی سر. وسنن الطہارۃ غسل الیدین ثلاثہ قبل ادخالہما ہاں قبل ادخالہما قبل لو کیوں پڑھا؟ لو لام کے اوپر پیش کیوں پڑھی؟ قبل ہاں قبلہ. قبل جی قبل ادخالہما الاناء ہاں اذا استيقظ المتوضئ. یہ ساتھ یہ بھی ہے نا انا آگے بعد. جی جی اناء سوری ثلاثا ہاں قبل ادخالہما الاناء ثلاثا اذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء جی والسواك والمزمزة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع ہاں وتكرار الغسل إلى الثلاث. بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ یہ جو دو لوگوں نے عبارت پڑھی ہے سننے والوں کو بھی پچھلے سبق کی بنیاد پہ اب اس کی اعراب کی سمجھ آ رہی ہوگی. اچھا جی، اب اگلا سبق ہم نے پڑھنا ہے. اگلا سبق کون؟ اطہر صاحب، مولانا اطہر محمود صاحب. جی استاد جی. آپ یہاں سے پڑھیں، یہ وَيَسْتَحِبُّ یہاں سے. وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ. جی او پڑھا ہے آپ نے، ٹھیک ہے آگے. لِلْمُتَوَضِّئِ بن جائے گا جی، لام جارہ کی وجہ سے. اچھا چلے ٹھیک ہے، جلدی آپ چلیں. این ہاں و طہارت. ہاں عین، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ واو یہ کیسے، یہ مادہ کیا ہے جی؟ ینویہ. ہاں نوا ینوی، نوا ینوی، رما یرمی، یہ آپ نے پڑھا ہوگا رما یرمی، نوا ینویہ ینوی. بن جائے گا. ہاں جی ینویہ طہارت ویستوئب رأسہ بالمسح اچھا ویرتب ہاں ویرتب ویورت ویرتب الوضوء فیبدأ بما بدأ اللہ تعالی. ہاں جی آگے. بدأ اللہ تعالی بذکرہ ہاں وبالمیامن ٹھیک ہے. ومسح الرکبۃ والمعانی. بس یہاں تک ہے، یہ یہاں تک ہو گیا. یہ مستحبات بیان کیے جا رہے ہیں وضو کے. یہاں اوپر یہاں سے لے کے یہاں تک بیان کی جا رہی تھی سنتیں، یہاں سے یہاں تک ہو رہے ہیں مستحبات، اور یہاں سے والمعانی الناقضہ، یہاں سے آگے وضو توڑنے والی چیزیں بیان ہو رہی ہیں. اچھا جی، اب یہ میں نے اعراب لگائے ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں، اب ذرا توجہ فرمائیں، پڑھیں دوبارہ یہاں سے. وہ یہاں سے ہاں جی وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ دوبارہ أَنْ يَنْوِيَ آرام آرام سے ایک ایک لفظ پڑھنا ہے. یہ کیا ہے؟ واہ آگے يَسْتَحَبُّ. یستحب، یہ کون سا باب ہے؟ باب استفعال. تو باب، يستحب. ہاں باب استفعال کا جب ہم مضارع بنائیں گے
मसलन इस्तकबाला आगे, सारी आवाज हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है जी? वयुस आ रही है। ये आ रही है। अच्छा ठीक है, वो बिजली चली गई थी तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब हाँ जी पढ़िए। वयुस्तहब्बु, वो युस्तहब्बु आएगा, क्या आएगा? अच्छा पहले तो ये बताएं कि ये बाब है, बाब इस्तिफाल, तो जी इस्तिहबाब ये लफ्ज आएगा इस्तिहबाबुन, तो इसका जब हम माजी बनाएंगे तो क्या बनेगा? हाँ जी अतर साहब। माजी बना इस्तहब्बा, हाँ असल में क्या था? इस्तहबाबा। इस्तहबाबा, तो बा और बा दो हरफ एक जिन्स के आ जाएं तो उनको आपस में हम मिला देते हैं, इदगाम कर देते हैं। तो बा जो पहला बा है उसकी हरकत पीछे वाले लफ्ज को दे दी, तो इस्तहब बा, और बा को बा के अंदर दाखिल करके तो यहाँ पर हमने शद लगा दी, शद, इसको हम कहते हैं इदगाम करना। तो ये बन गया इस्तहब्बा, और इसका मुजारे क्या बनेगा? यस्तहिब, यस्तहिब्बु, यस्तहिब्बु। ठीक है, अब पढ़े जरा वयस्तहिब्बु आगे। लिलमुतवज्जिई ठीक है, अन यनवियत तहार, अन यनवियत तहारतु, तू। अच्छा अब ये देखें जरा, इसका तर्जमा करें जरा, वयस्तहिब्बु से। वयस्तहिब्बु, और वो जो यस्तहिब्बु मोहब्बत करता है जी। नहीं नहीं, ये मोहब्बत से नहीं निकला, आप इसे कहेंगे कि मुस्तहब है, अच्छा है, वजू बेहतर है। ठीक है जी। वुजू करने वाले के लिए बेहतर है हाँ अन यनविया के, वो नियत कर ले जी, नवा हाँ, यनवी, ये के किसका तर्जमा है? के, अन ये हाँ इस वजह से मिला है जी, ये अन बनाया मस्दर की वजह से। हाँ, नहीं वो अलग चीज है कि अन की वजह से आगे फेल मुजारे मस्तर बनता है, लेकिन तर्जमा जब आप करेंगे तो के किसका तर्जमा करेंगे? अन का। मुस्तहब है वुजू ठीक है जी। करने वाले के लिए, आगे के यनविया के वो नियत कर ले, हम्म ये अब जी तहार रहता बनेगा। ठीक है, अब आप पहुंच गए हैं। तहार आता क्यों? क्योंकि उस्ताद जी ये मफूल बनेगा इसके लिए। फिर इसका फाइल किधर है? फाइल ये यनवी के अंदर है उस्ताद जी, जो हुआ जमीर है इसकी। हुआ जमीर है, और वो किसकी तरफ लौट रही है? उसका मिस्ताक क्या है? मुतवज, ये उस्ताद जी वुजू करने लिल मुतवज्जिउ की तरफ। लिल मुतवज्जी, ये पूरे की तरफ के सिर्फ मुतवज्जी की तरफ? ये पूरे की तरफ नहीं उस्ताद जी, ये नहीं तो पूरे पूरा तो की दो तरफ है ना, नहीं लौटेगी, एक लाम ये है पूरा एक जो अल, तो एक जमीर दो जी चीजों की तरफ उस्ताद लौटेगी। जी, यानी कि दो मतलब नहीं, अनविया के अंदर जो हुआ जमीर है वो किसकी तरफ लौटेगी? जी उस्ताद जी जी हाँ जी जी उस्ताद जी। किसकी तरफ?
ये जिन लोगों के माइक खुले हैं वो जरा बंद कर लें। मैं जरा अतर साहब से दो हाथ कर लूं जरा। अतर साहब आप तो माइक खोलें अपना। जी जी उस्ताद जी खोल लिया। आप बताएं कि अयनविया के अंदर जो हुआ ज़मीर है, जो इसका फाइल बन रहा है, वो किसकी तरफ लौट रही है? ये उस्ताद जी मुतवज्जिओ की तरफ, ये हाँ, मुतवज्जिओ की तरफ। वुजू करने वाला, हाँ ठीक है, अब यहाँ तक आपने और ये जो लिल मुतवज्जी है, ये जो मुताल्लक है ये लिल मुतवज्जी ये लौट रहा है यस्तहिब्बु की तरफ। लौटता नहीं है, जब जार मजरूर हो तो वो क्या होता है? मुताल्लक बन जाता है जी। मुतल्लक बन जाता है। और अगर इसका मुतल्लक लफ्जों में मौजूद हो तो वो कौन सा मुतल्लक होता है? मुताल्लक लग़व। हाँ पूरा बताएं, पूरा। इतना ही पता है जी, लग़व होगा। ना यार, ऐसे तो ना करें, 2-3 हफ्ते हो गए हम इसे दोहरा रहे हैं। कोई और बताएं। नहीं यानी कि इतना कि उस्ताद जी पता, आगे मुकम्मल पता नहीं है। अभी बताते हैं, कोई और बताते हैं। हाँ जी, अगर जार मजरूर का मुतल्लक लफ्जों में मौजूद हो तो वो कौन सा मुतल्लक होता है? अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीदुन। होने को जी उस्ताद जी। हाँ, डॉक्टर खालिद साहब ने बताया ज़र्फ़ लग़्व मुतल्लक, तो ठीक बताया है। अच्छा, और अगर लफ्जों में मौजूद ना हो तो उसको क्या कहते हैं? मुस्तकर। हाँ पूरा बताया ना, पूरा। ज़र्फ़े मुस्ततर मुतल्लक, मुस्तकर भी कहते हैं काफ के साथ, और ता मुस्ततर छुपा हुआ मुतल्लक भी कहते हैं। अच्छा, आप ये तर्जमा करें जरा भाई यस्तहिब्बु से, दोबारा तर्जमा करें। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही है, तो अतर साहब की आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, एहसन साहब आप जरा तर्जमा कीजिए यहाँ से वयस्तहिब्बु से। वयस्तहिब्बु लिल मुतवज्जिउ, और मुस्तहिब है वज़ू करने वाले के लिए यन व तहारता, कि वो नियत करे तहारत की। हाँ, तर्जमा आपने ठीक किया, लेकिन इबारत आपने ठीक नहीं पढ़ी। दोबारा पढ़िए जरा, सिर्फ इबारत पढ़ें। लिल मुतवज्जिउ, जी ऊ लिल क्यों? मुतवज्जिआ, लिल मुतवज्जिई होगा। हाँ, आपने तीनों ही पढ़ दिए हैं। नहीं, मुतवज्जिई होगा, लाम की वजह से, लाम पे जा रहा है। हाँ, ये जार मजरूर होगा ना, जी तो लिल जी जी। मुतवज्जिई। आगे ये यन यन वयत तहारत, नहीं, ये असल तहारा में है यनवी। यन। तो जैसे यन, सो या इसमें फिर साकत हो जाएगी, यन उससे अदगाम हो गई, यन वत तहारत नहीं, हो असल जाएगी। में है ना यनमी, यनवी। जी यनवी, वाजिर या वी, ये है। जी। तो जब ये अन आ जाए, अन फेल मुजारे पे अन आ जाए तो वो क्या करता है? तो मस्दर बन जाता हाँ, मसदर तो बनता है। ये माना के एतबार से लफ्जों में ये क्या तब्दीली करता है? है। पता नहीं, आपने हुरूफे नासिबा पढ़े होंगे, हुरूफे नासिबा। नहीं पढ़े जी, अभी नहीं पढ़े। अच्छा, आप लोगों ने अभी नहीं पढ़े, पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। मिर्जा जवाद साहब। मंसूब बना था। हाँ, मंसूब होगा। मिर्जा साहब ने हाथ खड़ा किया है। सर जी ये युस्तहब्बु नहीं है, ये हाँ, मैं ये मजबूरी बताता हूँ, ये दोनों पढ़े जा सकते हैं।
यस्तहिब्बु भी ठीक है और युस्तहब्बु भी ठीक है, लेकिन अगर युस्तहब्बु, मैं ये कह रहा था कि युस्तहिब्बु पढ़ें तो ये मसहन होना चाहिए ना, एंड पे जो लफ्ज है ये मसहू है, कहाँ पे? आखिरी जो लफ्ज है। अच्छा, मसहर रकबा, मसहुर हाँ रकबा। जी। हाँ, वो वहां पे जाएंगे फिर इंशाल्लाह देखते हैं, लेकिन ये दोनों पढ़े जा सकते हैं, युस्तहब्बु भी और यस्तहिब्बु भी। मैं अभी बताता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, एहसान साहब आपने ये अत्तहाराता पढ़ा था? इससे तहारतु होगा। नहीं नहीं, इसकी वजह भी बतानी है ना आपने। सर बता ये दें जी। नियत करे सर, ये जनवरी तो तो ये हम यही पीते हैं फेल पानी। होगा, फेल होगा, और तहारा तो मुतल्लिक फेल होगा। नहीं, ये फाइल होगा, मैं फाइल बताऊं? के मफूल होगा। हाँ जी, सिस्टर गजाला तो आप नियत बताएं। करने वाला तो फाइल है ना। जी जी सर, ये मफूल मफूल होगा, इसलिए इसके ऊपर जबर आएगी। हाँ, मफूल भी होगा, इसलिए इसके ऊपर जबर आएगी, और यनवी के अंदर जमीर होगी, हुआ, वो इसका फाइल होगी। ठीक है। अच्छा, और आगे अब्दुल वाजिद साहब, मौलाना अब्दुल वाजिद साहब। जी उस्ताद जी। अच्छा जी, आप ये बताएं, यहां से इसकी तरकीब करें। वह यस्तहिब्बु, यस्तहिब्बु फेल, व यस्तहिब्बु लिल मुतवद्दी हाँ अन तरकीब करते हैं। यनवियत अन यनवियत तहारता हाँ ठीक है, व बस यस्तौइबा। बस, ना ना आगे नहीं पढ़ना, इसकी तरकीब करनी है इतने जुमले की। इतने जुमले की तरकीब करनी है कि यस्तहिब्बु फेल है, लाम जारा है, अल मुतवज़्ज़ी मजरूर है, इस तरह। व यस्तहिब्बु फेल है, ठीक है, मजारे है, ठीक है। और लिल मुतवद्दी फाइल है। नहीं, लिल मुतवज़्ज़ी लाम अलग है, अल मुतवज़्ज़ी अलग है, इसको अलग अलग भी तो बनाए ना, क्या बनना। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो आपकी नहीं आ रही? मैं उसकी तरकीब के बारे में सोच रहा हूँ तो इसलिए नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपकी मदद के लिए किसी और को बुलाते हैं। अच्छा। ये अच्छी बात है। आ, ये तैयबा है, तैयबा, तैयबा गोडेल, आपको आवाज आ रही है? जी उस्ताद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसकी तरकीब करें यस्तहिब्बु से। व यस्तहिब्बु लिल मुतवज़्ज़ी, जी वाव हर्फ अतफ। हाँ, वाव को छोड़ दें सर इसको आगे। अलग करेंगे। नहीं नहीं, वाव को छोड़ दें, आगे चलें। यस्तहिब्बु, जी, यस्तहिब्बु फेल, जी लाम हर्फ जार, ठीक है, मुतवज़्ज़ी मजरूर, ठीक है। जार मजरूर मिलकर जी हाँ जी, जार मजरूर मिलकर क्या बना? हर्फ आ, जारा जार मजरूर मिलकर क्या बनता है?
मुतालिक होता है। मुतालिक ताल्लिक हुआ किसके? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी मुतालिक हुआ जी जी। जार मजरूर का तो हम पिछली 3-4 क्लासेस से पढ़ रहे हैं ना, तो अब इसमें तो आपको जल्दी जल्दी बताना चाहिए। जार मजरूर अगली जार इबारत के जार मजरूर मिलकर हाँ मुतालिक शिबा फेल अ, नहीं शिबा फेल के नहीं। वहां पर होता है जहां पर इसका मुतल्लक लफ्जों में मौजूद ना हो, जी तो इसका मुतल्लक लफ्जों में मौजूद नहीं है। है कौन सा? कौन सा है फे इसका मुतल्लक? यस्तहिब्बु फेल हाँ यस्तहिब्बु के। ये हमने पढ़ा था ना कि जार मजरूर अपने पीछे वाली इबारत में से किसी के मुतल्लक हो सकता है, और इसके पीछे तो एक ही है यस्तहिब्बु, और ये फेल है। सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर इसके मुतल्लक करेंगे तो क्या तर्जमा ठीक होगा। तो अगर तर्जमा ठीक है तो लफ्जों में ही किसी लफ्ज के मुतल्लक करते हैं। तो बताएं अब ये किसके मुतल्लक है जार मजरूर? जल्दी जल्दी बताएं। आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलें साकिब साहब आप बताएं। जी ये फेल के मुतालिक है, यस्ताहिबु के। अब दोबारा इसकी तरकीब करें अब सारे की। हाँ जी, यस्तहिब्बु यस्ताहिबु फेल बा फाइल है, हुआ ज़मीर है, इसमें लाम लामे जारा है, मुतवज़्ज़ी जो है वो मजरूर है, तो जार मजरूर मिलके मुतालिक हो गए हैं अपने फेल के यस्ताहिबु के। उसके बाद अन जो है वो शर्तिया है, और हाँ उसके अन शर्तिया है, वो तो यही इन शर्तिया होता है। तर्जमे से यही लग रहा है कि शर्तिया बन के उसकी जजा आगे आ जाए नहीं, जवाब अन फेल का। शर्तिया इन होता है। अच्छा इन जी। इन की कई मिसालें हैं ना कुरान करीम में भी। जी तो फिर अन मौसूला। अन मौसूला भी नहीं होता। मौसूल तो इसमें मौसूल अल्लज़ी मा मन ये वाले हैं। मौसूला कैसे होगा? इसमें मौसूल के जो दखल नासिबा हाँ अन नासिबा। आपने साकिब साहब आपने हुरूफे नासिबा पढ़े होंगे। जी मैंने पढ़े हुए हैं, लेकिन वो तरकीब में भी क्या उसे नासिबा कहेंगे? इस जुमले की तरकीब में तो मतलब हाँ जी वो उनको नासिबा ही कहेंगे। अन आप कहेंगे अन मस्तरिया नासिबा, अन अन मस्तरिया नासिबा। नासिबा, अन मस्दरिया नासिबा। हाँ यनविया जो है वो फेल बा फाइल, और तहारता जो है इसका मफूल। ठीक है तो मफूल अपने फाइल के साथ मिलके है ना। अब फेल अपने फाइल और मफूल, तरकीब इस तरह फेल करनी है क्योंकि फेल बुनियाद है ना, तो फेल को पहले जिक्र करो। फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर। फेल अपने फाइल और मफूल के से मिलके अब अन नासिबा के साथ उसे कैसे नहीं अटैच नहीं करें? वो देखे ना, वो मिलके क्या बना, पहले वो तो बनाए पूरा। वो वो मफूल बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर क्या बनता है? जुमला फेलिया। हाँ पहले ये बनाना है, जुमला फेलिया खबरिया हुआ। जुमला फेलिया खबरिया हुआ। हाँ और अन जो मस्तरिया है इसने क्या जी किया? इसने नसब दिया है और एक एक रीजन बना है, वजह बना है। हाँ जी। हाँ एक तो इसने नसब दिया अयन विया, ये जाहिरी तौर पे इसने ये तब्दीली की है। एक तब्दीली वो माना में करेगा, यानी इसको मस्तर के माना में कर मस्दर देगा। के माना में, जी जी बिल्कुल मस्दर के माना में से ले गया। अच्छा तो इसका जब मतलब है कि अब ये जुमला नहीं है पूरा, ये एक हाँ लफ्ज जी है यानी मस्तर बन गया। ये मुफरद बन गया जी। अच्छा मुफरत बन गया अब अन की वजह से, तो फिर क्या हाँ बना? जी पिछले के साथ इसका क्या ताल्लुक है? फिर ये पिछले का मफूल बन जाएगा। किसका?
यस्तहिब्बु फेल का। अच्छा, अब आपने जो तरकीब की है उसमें यस्तहिब्बु के अंदर हुआ ज़मीर फाइल और अन यनविया ये मफूल, जी ये किया ना। जी। अब आप इसका तर्जुमा मुझे इस तरकीब के मुताबिक करके दिखाएं जिसमें फाइल भी तर्जुमे में वाज़ेह हो और मफूल भी। जी उसके लिए मुस्तहब है कि इसके लिए हुआ वो नहीं, हुआ उसके लिए हुआ क्यों, के लिए उसके लिए क्यों, वो तो फिर फाइल नहीं बनेगा तर्जुमे में, फाइल का तर्जुमा करना ना। मुस्तहब हैं। मुस्तहब को कैसे लाएंगे उसके अंदर? हाँ, अब देखें, इसको जरा गौर करें सभी। यहाँ पे अब तर्जुमा है और मुस्तहब है। क्या मुस्तहब है? मुस्तहब है कि वो तहारत से शुरू करें, ना ना, हाँ, नियत क्या मुस्तहब है? नियत करें, नियत करना, नियत करना। तहारत की नियत करना मुस्तहब है। साकिब साहब, क्या मुस्तहब है? जी 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 जी, तहारत की नियत करना। तो इसका फाइल हुआ बनेगी ज़मीर? नहीं, इसका फाइल बनेगी ये जो मुफरद हमने निकाला है हाँ, ये तहारता। पूरा जी जुमला अन की वजह से मस्दर बनने के बाद ये बनेगा फाइल यस्तहिब्बु का फाइल। फाइल बनेगा, जी बिल्कुल सही है। अब ये क्योंकि अन यहाँ पे इस पे हम रफा तो दे नहीं सकते, तो हम ये कहेंगे कि ये महल्लन मरफू है। महल्लन, महल्लन का मतलब क्या है कि ये मरफू की जगह पे है, अगरचे मरफू नहीं है, क्योंकि ये जुमला है पूरा। तो जुमला पूरे का तो मरफू नहीं होता, वो मरफू तो वाहिद होता है, मुफरद। लेकिन ये महल्लन मरफू है, यानी फाइल की जगह पे है ये। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हम्म। ये मिर्जा साहब ने जो यहाँ तवज्जो दिलाई थी कि इसको युस्तहब्बु भी पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो फिर ये जो अयनविया है, ये सारा मिलके ये क्या बन जाएगा? ये नाइब इसका फाइल हो, नाइब फाइल हो जाएगा, नाइब फाइल हो क्योंकि जाएगी। जी मजहूल का नाइब फाइल होता है। जी अच्छा, लेकिन दोनों पढ़े जा सकते हैं, तर्जुमा दोनों से बन जाता है। अच्छा, इसमें जो आप नई बातें सीख रहे हैं वो थोड़ा ज़हन में रखें, आखिर में मैं दोहराऊंगा भी। आपने ये जो सीखा है, ये अन यनवियत तहारता, कि ये पूरा यनविया फेल, इसके अंदर हुआ ज़मीर फाइल, तहारता मफूल, फेल अपने फाइल और मफूल से मिलके जुमला फेलिया खबरिया होके मस्तर हुआ। अब इसका हम क्या करेंगे जब तरकीब करेंगे? मस्तर हुआ अन की वजह मस्तर से। हुआ, जी ठीक है। तो अन मस्तरिया के साथ मिलके ये मस्तर हुआ, और मस्तर हो के ये फाइल हुआ यस्तहिब्बु का। अब इसकी हैसियत मुतय्यन हो गई कि ये पूरा जुमला मस्तर बन के, क्योंकि फाइल मुफरद होता है, ये पूरा जुमला नहीं होता, तो अन की जी वजह से ये मुफरद बन के ये इसका फाइल बन गया, या नायब फाइल बन गया। इसको आप जरा इस तरह समझें 1 मिनट के लिए। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये पूरा जुमला, यस्तहिब्बु आई यनवा, यनवा नहीं, यनविया, यनविया। यनविया। अब ये यनविया सारे का सारा जुमला बन के ये इसकी वजह से हो गया मस्दर। तो अब ये इबारत क्या बनती, यानी अगर हम इसको मस्दर ही लिखते तो ये लिखते इसके साथ यस्तहिब्बु नियतु, नियतुत तहारती लिल मुतवज़्ज़ी।
यस्तहिब्बु, ये निया नियत कहाँ से आया? ये निया हमने जो निकाला ये कहाँ से आया? ये ये मस्तर है असल में इसका। ये है, ये अन की वजह से ये जो मफूल ये फेल मुजारे है ये मस्तर बन गया है और ये इस माना में आ गया। और ये जो है, अब अगर हम नियत निकालते हैं तो यस्तहिब्बु का ये फाइल बनेगा, तो इस पे आएगा रफा, यस्तहिब्बु नियतुत तहारती। और दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या है? यस्तहिब्बु अन यनवियत तहारता। ये समझ आई है जी? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है। एक तो आपने ये देख लिया कि फेल मुजारे पर जब अन नासिबा आ जाए तो वो इसको मस्तर के माना में कर देता है। इस पर हुक्म फिर कौन सा लगता है? मस्दर वाला। और मस्दर क्योंकि मुफरद है इसलिए ये मस्दर बन के इसका फाइल भी बन जाएगा, लेकिन ये पूरा जुमला जो है वो फाइल नहीं बनता। अच्छा, अब जरा तर्जमे में दोनों का फर्क देखें आप। तर्जमे में देखें, अगर मैं इस जुमले का तर्जमा करूं यहां तक, यस्तहिब्बु अन यनवियत तहारता, तो इसका तर्जमा ऐसे होगा, मुस्तहब है वुजू करने वाले के लिए कि वो नियत कर ले तहारत की। अब ये पूरा तर्जमा फेल फाइल मफूल सारा कुछ है, और के तर्जमा किया हमने इस अन का, के वो नियत कर ले तहारत की। और अगर हम इसकी बजाय इसका तर्जमा करें, यानी इस जुमले का, यानी ये वाला तर्जमा करना चाहें, तो फिर तर्जमा होगा मुस्तहब है वुजू करने वाले की ये के लिए तहारत की नियत करना। अब ये नियत करना किसका तर्जमा है? मस्तर का। तो यही तर्जमा हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो करेगा जिसको इस बात की समझ होगी कि अन की वजह से ये नियतुन मस्तर के माना में आ चुका है। जब ये मस्तर के माना में आ चुका है तो इसका तर्जमा भी मस्तर वाला हो सकता है। हाँ जी, ये बात समझ आई है? जी समझ आइए। अच्छा, मैं अब दोबारा वो इबारत शेयर करता हूँ। अब आप में से कोई और जरा इसका तर्जुमा करें। जी अब्दुल वाजिद साहब, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इंशाअल्लाह उल अजीज। अच्छा, अब आप में से कौन तर्जुमा करेगा इसका? साकिब शाह वली खान। हाँ जी, मौलाना शाह वली खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये यस्तहिब्बु से हमने अभी तरकीब की है। मैंने दो तर्जमे बताए हैं, दो तर्जमा करने के दो तरीके, तो आप जरा तर्जमा करें दोनों तरीकों से। अगर हम यहाँ पर मस्तर वाला तर्जमा ना करें तो तर्जमा कैसे होगा, पहले वो करें। यस्तहिब्बु मुस्तहब है लिल जी मुतवज़्ज़ी, वजू करने वाले के लिए जी अय्यनवियत, कि वो नियत करे तहारत की। हाँ, के किसका तर्जमा है? ये अन की वजह से जी, अन। नासिब अन। के वो नियत करे, वो किसका तर्जमा है? वो तो यनवी के अंदर जो हुआ ज़मीर है जी, हाँ, फाइल जमीर का तर्जमा। ठीक हो गया। फाइल ज़मीर। अच्छा, अब आप इसी का तर्जमा वो करें जो अभी हमने किया है, मस्दर वाला तर्जमा। अब ये अन की वजह से मस्दर बन गया ना ये सब। जी, अब इसका मस्दर वाला तर्जमा करें यहाँ से, यस्तहिब्बु। और मुस्तहब है वजू करने वाले के लिए तहारत की नियत करना। करना। अब ये तहारत की नियत करना
یہ کس کا ترجمہ ہے؟ نیت الطہارہ، ان کی وجہ سے جو یہ مصدر بنا تھا اس کا ترجمہ. جزاک اللہ خیرن. ہاں جی، یہ بات اگر سب کچھ سمجھ آ گئی ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، اگر نہ اس کو دوہرا لیتے ہیں. سر یہ ایک سوال ہے میرا. جی جی. یستحب جو ہے یہ لازم ہے کہ متعدی ہے؟ ہاں یہ لازم ہے. لازم ہے. ہاں تو جی لازم ہے تو مجہول کیسے بن سکتا ہے پھر؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس لیے بن گیا کہ آپ نے کہہ دیا تھا. اور جب ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں تو یستحبو پڑھیں تو تب بھی استاد روکتے نہیں ہیں، لازم بھی مجہول بن جاتا ہے، اس کی وہ آپ نے کچھ شرائط پڑھی ہوں گی، لیکن یہاں پر جو درست ہے وہ یستحبو معروف ہی ہے، کیونکہ یہ فعل لازم ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور فعل لازم میں عام طور پہ اسے معروف ہی پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے شروع میں یستحبو ہی پڑھا ہے، یستحبو نہیں پڑھا. حالانکہ یستحبو بھی پڑھ لیں تو ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ یستحبو ہی پڑھیں، کیونکہ یہ فعل لازم ہے. فعل لازم اور فعل متعدی کا آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسے کہتے ہیں؟ جس فعل کو اپنے مکمل معنی کے لیے مفعول کی کوئی ضرورت نہ ہو وہ فعل لازم ہے، اور جس کو اپنے مفہوم بتانے کے لیے مفعول کی ضرورت پڑے وہ فعل متعدی ہے. مثال کے طور پہ جاء زید، زید آیا، بس ٹھیک ہے آیا، مفعول کی کوئی ضرورت نہیں، مفہوم پورا ادا ہو گیا فاعل کے ساتھ ہی. ضرب زید، زید نے مارا، اب یہ مفہوم پورا ادا نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز بھی ہونی چاہیے جس کو مارا ہے اس نے، وہ اگر مفعول درکار ہے یہاں پہ تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل متعدی. فعل لازم کو عام طور پہ معروف ہی پڑھا جاتا ہے، مجہول نہیں پڑھا جاتا. ہاں جی مرزا جواد صاحب. ارے مجھے تو لگ رہا ہے یہ متعدی ہے، کیونکہ کیسے؟ اس کا دوسری طرح سے ترجمہ کریں نا. مثال کے طور پہ ہاں جی میں کہتا ہوں یستحب زید، زید کے لیے مستحب ہے نیت طہارتی، ہاں طہارت کی نیت کا. ہاں اس زید کے اندر کے اب لیے وہ تو نہیں یہ زید کے لیے کہاں سے آ گیا؟ فائل کیسے بنا زید؟ وہ تو آئے گا یستحب لزید، تو جار مجرور بنے گا. ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا، سمجھا. اچھا جی، اور کوئی سوال اس جملے کے بارے میں؟ کیونکہ اگلی ساری عبارت اسی جملے کے ساتھ متعلق ہے. اس میں دو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، ایک تو یہ مرزا جواد صاحب کے سوال سے سیکھ لی کہ بھئی یہ لازم ہے اور فعل لازم کا مجہول نہیں پڑھتے. پھر ہم نے دوہرا لیا جار مجرور کا، کہ جار مجرور متعلق ہوتا ہے لفظوں کے اندر، اور یہ جب لفظوں کے اندر ہو تو وہ ظرف لغو متعلق ہوتا ہے. اچھا تیسری چیز ہم نے یہ ان کی پڑھ لی، ان. احسن صاحب آپ نے ابھی حروف ناصبہ نہیں پڑھے، لیکن آپ نے وہ پڑھے ہوں گے گردان میں، جیسے کہ حرف لن ناصبہ، لن یضربہ، لن یضربہ ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک آدمی. اب یہ حرف لن اور اسی طرح ان، کے اور اذن، یہ چار حرف ہیں جن کو ہم حرف ناصبہ کہتے ہیں. حرف ناصبہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حروف فعل مضارع کو آخر میں نصب دے دیتے ہیں. احسن صاحب آپ نے وہ گردان پڑھی ہے لن یضربہ والی؟ جی میں نے خود سے پڑھی ہے، ویسے یہ میں نے جس سیمسٹر میں جوائن کیا ہے پچھلے سیمسٹر میں ان کو پڑھائی تھی میں نے، ویسے مطلب اچھا ٹیچر سے نہیں پڑھی، خود ہی پڑھی ہے. اس میں وہ جو حرف لن ہے وہ اصل میں ان چار کے گروپ کا ایک حصہ ہے، ان حروف کے کہ جو فعل مضارع کو نصب دے دیتے ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے ان، چار ہیں، ان، لن، کے، اذن. یہ چار جب بھی فعل مضارع پہ آئیں گے تو اس کے آخر میں یہ آئے گا، یعنی نصب آئے گی، اسی لیے ان کو کہتے ہیں ان ناصبہ یا لن ناصبہ یا کے ناصبہ یا اذن ناصبہ.
रूफ नासिबा। ये सारे रूफ इसको मसदर भी बना देंगे? नहीं, अमल तो ये एक जैसा करेंगे, लेकिन माना के अंदर ये तब्दीलियां मुख्तलिफ होंगी। जैसे कि लन यज़रिबा, इसका तर्जमा मस्दर वाला नहीं करेंगे हम। इसने लन ने फेल मुजारे को मस्दर नहीं बनाया, बल्कि इसके माना में ये तब्दीली की कि इसको मुस्तकबिल के माना में खास कर दिया। अब मुजारे के अंदर जो माजी और मुजारे दो माना होते हैं, हम अब उसमें सिर्फ मुजारे वाला माना करेंगे, माजी वाला हाल वाला नहीं कर सकते। मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दो माना होते हैं। जब ये लन नासिबा आ गया तो उसने हाल वाला माना ख़त्म कर दिया और इसको मुस्तकबिल के साथ खास कर दिया। उसका अमल मानवी तौर पर ये है, यानी लफ्जी तौर पर दोनों का एक है। इसी तरह जो कह आता है और इज़न आता है, उनका अलग अलग तब्दीली होती है माना में भी, माना में। हाँ जी एहसन साहब। जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये आगे भी आएगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। अयनवियत तहारता, ये आपने पढ़ लिया। डॉक्टर खालिद साहब हैं? डॉक्टर खालिद साहब या शेख कुल शैअन, जी सर। ये यहां से पढ़ें आगे। वा यस औ आवाज कट रही है आपकी, दोबारा पढ़िए। कनेक्शन मसला। हाँ, आवाज काफी कट रही है। अच्छा, मैं आपकी जगह पे फिर किसी और को जहमत देता हूँ। कौन 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 कौन? तुफैल अहमद साहब, मौलाना तुफैल साहब। या शेख तुफैल, हल अंत मौजूद फी सफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तबीयत ठीक है जी? ये यहाँ से पढ़िए। जी सर। वयस्तौ, वयस्तौइबु रअसिहि बिलमस्हि। आराम आराम से जरा। वयस्तौइबु। अच्छा, आगे। रअसिहि बिलमस्हि। रसीही, सीन के नीचे जेर, बिलमसही। जी। क्या मतलब है? वयरकबुल। नहीं नहीं, ठहर जाए। इसका क्या मतलब है? तर्जुमा कर सकते हैं आप? नहीं सर। अच्छा, आप कौन से सेमेस्टर में हैं? चौथे सर। अच्छा, चौथे सेमेस्टर में। तो आपको थोड़ी सी हल्ले इबारत की क्लास देखने की जरूरत है। जी सर। तो आइंदा जितनी भी बात होगी जुमे वाले दिन, मैं जितनी इबारत जी सर। बताऊंगा वो आपने ही बतानी है सारी, ठीक है? जी सर। जी सर। अगले हफ्ते छुट्टी नहीं करनी यार, मेहरबानी। नहीं सर, नहीं सर। इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, वो आपने हल करके आना है, फिर आपसे इस्तेफादा करेंगे हम। जी सर। अच्छा, ये आईटी लिंक्स पे कौन है? मैं हूँ सर। ओहो, हाफिज साहब। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, चलें आप पढ़ें यहाँ से। वयस, वयस्तौइबु। हाँ जी तौइबा। आगे। रअसिहि बिलमस्हि। अच्छा, आपने यस्तौइबु पढ़ा, बा के ऊपर हाँ। पेश। इसका लेकिन पीछे आपने इसका पीछे कोई ताल्लुक है इबारत के साथ? इसके साथ चल रहा है, इसका साथ किसके साथ? यनवि तहारा हाँ, वयस्तहारा।
हाँ जी हाँ, ये जो वाव है, ये वाव अतफ डाल रहा है ना, ये अतफ। किस पे डाल रहा है? तहारा। तहारता पे कि हाँ जी यनविया पे? ये हाँ बताएं, यन यनविया पे। हाँ जी सर। तहारता भी इसका अतफ हो सकता है? तहारता इस पे अतफ वाव हो अतफ है ना। इस पे अतफ डाला जा सकता है कि नहीं? कोई और बताएं। यस्तौइबा या यस्तौइबु का अतफ तहारत पे डाला जा सकता है कि नहीं? हाँ जी और कोई डाला बताएं जा और। सकता है। हाँ जी। नहीं डाला जा सकता उस्ताद। तहारा इसम है और वो आगे फेल है, तो तो ये उलमा का इख्तलाफ हो गया है। अल्लामा हाफिज तारक साहब फरमा रहे हैं कि क्योंकि डाला जा ये सकता सर वाव से पहले वाली जो इबारत है वो मातूफ है, मातूफ है। नहीं, पहली वाली सारी इबारत मातूफ अलैह नहीं होती, कोई एक चीज होती है हाँ ना। जी हाँ जी अब यहाँ पे वाव कुछ है। से पहले ये तीन चीजें हैं, अन, यनविया और अत्तहारता। तो इन तो तीनों में से किसी एक पर डालना ना, तब तो किस पर डालेंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक सही। किस पर डालेंगे? यनविया पर कि तहारा पर? यन अभी फिलहाल। हाँ, और अत्तहारा पे क्यों नहीं डाल सकते? मफूल है। तहारा मफूल है। और क्या इसम है अत्तहार। अत्तहारा इसम है। हाँ, ये आपने ठीक बताया। देखें, मातूफ मतोवले का ये उसूल आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे कि मातूफ मातूफ अलैह में आपस में इसम और फेल के एतबार से मुताबिकत होनी चाहिए। इसम का अतफ इसम पे पड़ेगा, फेल का अतफ फेल पे पड़ेगा, हरफ का अतफ हरफ पे पड़ेगा। अब ये यस्तौइबा फेल है, तो इसका अतफ हाँ किस जी पे पड़ना चाहिए? यनवी पे हाँ, यनविया पे, क्योंकि वो फेल है। फेल। हाँ जी सर। तो इसका मतलब है कि फेल का अतफ फेल पे पढ़ना है, तो यनविया का अतफ अना यस्तौइबा का अतफ यनविया पर पड़ेगा। अत्तहारा पे नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो बिल्कुल इसम है। फेल का अतफ इसम पे नहीं पढ़ सकता। अच्छा, अगर इसका अतफ इस पे पढ़ रहा है यनविया पे, तो फिर क्या पढ़ना है? यस्तौइबा का यस्तौइबु का यस्तौइबी। ईबा क्यों? यन। हाँ कि ये भी यानी यन विया है तो ईबा आ जाएगी। फेल। नहीं, हाँ जी यनविया है तो यस्तौइबा है, ये तो वजह नहीं बनती। वजह क्या बनेगी जो हम बताएंगे, असल वजह? हाँ जी, बताऊं। अन की वजह से। हाँ, अन की वजह के तो नस्ब आया ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस पर अतफ डालेंगे तो यस्तौइबा के साथ भी अन लग जाएगा, अन अमल करेगा यस्तौइबा पर भी, क्योंकि आप जिस चीज पर अतफ डाल रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आपने यस्तौइबा को उठा के यनविया की जगह पर रख दिया। अब यनविया के पीछे जितनी इबारत है वो सारी यस्तौइबा के साथ भी लग जाएगी। मसलन इसकी आपने मिसाल पढ़ी होगी, जाअनी ज़ैदुन व अम्रुन, जाअनी ज़ैदुन व अम्रुन, जाअनी ज़ैदुन मेरे पास जैद आया, व अम्रुन और अमर आया। जब अमर का हमने अतफ जैद पर डाला तो इसका मतलब है ये इबारत ऐसे हुई, जाअनी ज़ैदुन व जाअनी अम्रुन। वो पिछली सारी इबारत मातूफ के साथ लग जाती है। तो अब ये बताएं कि यस्तौइबु पढ़ना है कि यस्तौइबा? यस्तौइबा ही पढ़ना
क्यों पढ़ना है? हाँ, क्योंकि अन इसके साथ भी है ना, तो यस तो अन भाई इसके बाद इसके साथ क्यों है, पूरी वजह बताएं। आके उसके वो इसका साथ सारी सारी पिछली इबारत लग जाती है। क्यों लगी, उसकी वजह भी तो बताएं। क्योंकि इसका अतफ है यनविया पर, हाँ और इस अतफ की वजह से अन इसके साथ लग गया, तो अन यहाँ पर भी अमल करेगा। इस तरह ये भी यस्तौइबू की बजाय यस्तौइबा पढ़ेंगे। बिल्कुल समझ आ गई इसकी? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अब आप ये बताएं आगे क्या पढ़ना है। ये रअसीही बिलमस, सी क्यों, सीन के नीचे जेर क्यों? रअसहु सीन पर भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि वो अन का ही फिर नहीं वो तो नहीं इधर आएगा। अन तो फेल पे अमल करेगा ना, हाँ जी, पर इस खत्म पे हो गया नहीं उसका। आएगा। तो हाँ ये जी। रअसहु या रअसीही या जो भी पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? रअसीही बिलमस, देखें रअसी पढ़ेंगे सीन के नीचे जेर, तो हाँ जी। जेर तो दो वजह से आती है सिर्फ। कौन कौन सी दो वजह? मजरूर और मुजाफ। मजरूर और मुजाफ इलैह। या तो इसके पीछे जार हो तो रअसी पढ़ सकते हैं, या फिर ये मुजाफ इलैह हो किसी मुजाफ का, फिर इसको रअसी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मजरूरात दो हैं सिर्फ, मजरूर बहरफ जर और मजरूर ब इजाफत। मजरूर बहरफ जर का मतलब है कि पीछे हरफ जर हो तो ये मजरूर हो सकता है। मजरूर ब इजाफत का मतलब है कि इसके नीचे इसके पीछे मुजाफ हो, तो ये मुजाफ इलैह बन रहा हो तो फिर ये जेर हो सकती है। सही। तो ये दोनों तो है नहीं। अब क्या पढ़ना है, जल्दी जल्दी बताएं। रअसहु बिल रअसहु, रअसहु सीन के ऊपर जबर पढ़ना है, तो वो क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये वही जो आपने पहले बताया कि जार भी नहीं और इजाफत भी नहीं, तो इससे ये तो नहीं पता चलता कि ये रअसहु, ये रअसु सीन के ऊपर पेज भी तो पढ़ सकते हैं। फिर रअसा पढ़ने की वजह होगी ना, क्योंकि मंसूबात कितने हैं? मंसूबात अभी आपने बताया 4 5। नहीं मंसूबात, वो तो हरफे नासबा थे ना। मंसूबात हाँ जी। कितने हैं? आपने पढ़ा ना, मंसूबात दो ही। मरफूआत, मंसूबात और हाँ जी। मजरूरात। हाँ जी। कोई और बताएं। मंसूबात 12 उस्ताद जी। 12 मंसूबात 12 है, और मरफूआत ये कितने हैं? मरफूआत 8 है, और मजरूरात हाँ कितने हैं? तो वो दो। हाँ, अब इसका मतलब है कि आपने अगर इसको रअसहु जबर पढ़ा है तो बताना है कि ये 12 में से क्या है, क्यों पढ़ा है जबर। फिर वो देखना पड़ेगा सर क्यों पड़ा। अच्छा, कोई और बता दें। सर ये मफूल बन रहा है ना, तो इसलिए इस पे नस्ब आएगा। हाँ, किसका मफूल बन रहा है? ये उसका यस्तौइबा का। यस्तौइबा का, ये फेल है ना हाफिज तारिक साहब, ये फेल है। और हाँ। फेल का क्या उसके साथ दो चीजें अटैच होती हैं फेल के साथ, कौन कौन सी? फाइल और मफऊल आमतौर पे। तो आप जब इसको यस्तौइबा को फेल बना रहे हैं तो आपको दोनों चीजें आइडेंटिफाई करनी है। यस्तौइबा का फेल कौन सा है? सिस्टर मारिया आप बताएं। सर हुआ हुआ सॉरी ज़मीर। फेल जो है वो हुआ ज़मीर है, उसका फाइल। हाँ, जी। हुआ ज़मीर है जो उसका फाइल है, और रअसहु क्या बन रहा है? उसका मफूल बन रहा है सर। ये हाँ। मुरक्कब इजाफी है और मुज़ाफ इलैह मिलके ये इसका मफूल बनेगा। अच्छा, आगे बिल मसही ये क्या बनेगा? जार मजरूर। जार मजरूर बन रहा है। जार मजरूर मिलके ये मुतल्लक होगा ना किसी के, तो किसके मुतल्लक करेंगे? रअसी।
अभी आपका भी रासी ही है हमने तो इसको रासा कर दिया नहीं, ये रासाहू के मुतल्लक हो सकता है, पहले तो आप ये सर ये बताएं। मुतल्लिक फेल होगा, सर ये मुतल्लिक फेल होगा, ये तौइब का जो इस तौइब का जो मुतल्लिक फेल बनेगा ना ये। हाँ ये बनेगा फेल का, रासाहू का क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि रासाहू तो मफूल है तो मुतल्लिक फेल ही बनेगा ना, और वैसे भी इससे इसके मायने से भी पता चल रहा है कि बिल मस ही, यानी वो उसकी तरफ लौट रहा है, फेल की तरफ। हाँ माना से तो पता चल रहा है कि उसी का है, लेकिन टेक्निकल रीजन क्या है ये मैंने बताई थी 2-3 क्लासेस में। ऐसा जार मजरूर जो है वो मुतल्लिक होके आते हैं किसी दो के चीजों, मुतल्लिक। हाँ दो जी। चीजों के मुतल्लक हो सकते हैं, कौन कौन सी 2 चीजें? सर ये वाला टॉपिक हमने भी पढ़ा नहीं, आपने भी जिक्र किया था, लेकिन मुझे सही से उसकी ना वो समझ में नहीं आई जो आपने भी बताई थी, हमने ये नहीं पढ़े हुए अभी। अच्छा चले मैं दोबारा बता देता हूँ, या आपने ध्यान में रखना। जार मजरूर ये मुतल्लक होता है 2 चीजों के, एक तो फेल के या फिर शिबे फेल के। अब शिबे फेल किसे कहते हैं? जो इसमें मुश्तक हैं, यानी इसमें फाइल, इसमें मफऊल, सिफत मुशब्बा और मस्दर। आमतौर पर ये 4 चीजें होती हैं, इसमें फाइल, इसमें मफऊल, सिफत मुशब्बा और मस्दर। इन 4 के भी जार मजरूर मुतल्लक हो सकता है फेल के अलावा। तो अब आपने जब बिल मसीह जार मजरूर आ गया, इसको पीछे मुतल्लक करना है, तो पीछे एक ये वाला फेल है यस्तौइबु, और ये एक रासाहु इसम है, और ये इसम इसमें मुश्तक नहीं है। आपको पता है इसमें मुश्तक किसे कहते हैं? जो मजदर से निकला होता है। हाँ मसलन आपने गर्दान पढ़ी जाराबा से, तो जाराबा से इसमें फाइल जो है जारिबुन, ये इसमें मुश्तक है। इसी तरह जो इसमें मफूल है मजरूबुन, ये इसमें मुश्तक है। इसी तरह आगे हम पढ़ते हैं कि आगे क्या पढ़ते हैं इसका, सिफत मुशब्बा का एक पढ़ते हैं जैसे शरीकुन, शरीक, अब ये सिफत मुशब्बा है। और इसी तरह ये जो ज़ारबा यज़रिबु ज़रबन, ये जो मस्दर है, इसके भी मुतल्लक किया जा सकता है। तो जार मजरूर मुतल्लक होता है 2 चीजों के, फेल के या शिबे फेल के। फेल तो ये बिल्कुल वाज़े है, माजी मुजारे वगैरह, और शिबे फेल का मतलब अस्माए मुश्तक्का जो मुजारे जो मस्दर से निकलते हैं, इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफत मुशब्बा वगैरह, और इसके साथ साथ जो मस्दर है उसके भी मुतल्लक हो सकते हैं। अब ये बिल मसही को आपने देखना है कि इसके पीछे कौन कौन सी चीजें हैं। एक ये फेल है और एक ये रस है। रस अस्माए मुश्तक्का में से कोई नहीं है, ये इसमें जामिद है, जामिद, और इसमें जामिद के जार मजरूर मुतल्लक नहीं हो सकता। हाँ जी एहसन साहब, ये अब वाज़ेह हो गया। अब आप जब इसकी हम तरकीब करेंगे तो वैसे करेंगे, ये अन से मैं इसकी अब यहाँ तक तरकीब कर रहा हूँ, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर 2-3 चीजें आपने नहीं सीखी हैं, तो उसको जरा आप फोकस करें। मैं यहाँ से तरकीब कर रहा हूँ यस्तहिब्बु से, इसको जरा गौर से नोट करें। यस्तहिब्बु फेल, लाम हरफे जर, अल मुतवज़्ज़ी मजरूर, जार मजरूर मिलके ये मुतल्लक हुआ यस्तहिब्बु फेल के, ज़र्फ़े लग़्व मुतअल्लक हुआ यस्तहिब्बु फेल के। अच्छा आपने ये मुतल्लक कर लिया, यहाँ तक बात खत्म हो गई। आगे अन मस्दरिया, अन को क्या कहेंगे? अन मस्दरिया। यनवी, यनविया फेल, हुआ ज़मीर इसका फाइल, अत्तहारता मफ़ऊल बिही, तो फेल अपने फाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर मातूफ अलैह हुआ। वाओ हरफे अतफ, ये वाओ। यस्तौइबा फेल, हुआ ज़मीर इसमें फाइल, रअसहु, रअसा मुज़ाफ, हा ज़मीर मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर ये मफ़ऊल बिही
इस फेल का। आगे बार फजर अलमसही मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़े लग़्व मुतअल्लिक़ हुआ यस्तौइबु फेल का, यस्तौइबा फेल का। यस्तौइबा फेल अपने फाइल मफूल बिही और मुतअल्लिक़ से मिलके जुमला फेलिया खबरिया होकर ये मातूफ हुआ, मातूफ हुआ इस मातूफ अलैह के लिए। अब मातूफ अलैह मिलकर ये अन की वजह से मस्तर बन गए, और वो मस्तर जो अन की वजह से मस्तर बना है वो मफऊल या वो फाइल हुए यस्तहिब्बु के। अब यस्तहिब्बु का फाइल आ गया हमारे पास, ये अन की वजह से मस्तर। तो अब हम इसको इसके साथ जोड़ के तो तरकीब करेंगे। यस्तहिब्बु फेल अपने फाइल और लिल मुतवज़्ज़ी मुतअल्लिक़ से मिलके जुमला फेलिया खबरिया हुआ। अब ये गोया कि यस्तहिब्बु से लेके यहाँ तक एक ही तरकीब में जुड़ गए सब के सब। हाँ जी, ये बात वाज़ेह हुई है। आगे जो है ना ये युरत्तिबु, सर एक क्वेश्चन है सर, जी एक जी क्वेश्चन है। जी जी सर अन के बाद हमने कहा कि यनवियत तहारता, ये मस्दर की वजह से मस्दर मुअव्वल बना, फिर ये फाइल बन जाएगा जी यस्तहिब्बु का, ठीक है। उसके जी बाद जी फिर जब हम वाव हरफ अतफ के बाद अगला वाला कर रहे हैं तो वो भी फाइल बनेगा, या ये हाँ इकट्ठा सारा कुछ ही एक ही फाइल बन हाँ, जाएगी? फाइल अव्वल फाइल सेकंड वो बनेगा? अन अन के साथ हमने जोड़ना ही तब है जब हम मातूफ और मातूफ अलैह को मिला लेंगे। अभी ये जो है ना वो युरत्तिबा, ये भी इसके साथ जुड़ना है, ये वाव हरफ अतफ के बाद की वजह से। तो इसका मतलब है कि अन के साथ हमने जोड़ना ही उस वक्त है कि जब ये सारे मातूफ अलैह मिल जाएंगे और फिर अन के साथ मिल के तो फिर ये मस्तर के माना में हो जाएंगे। हम इसे कहते हैं बतावील मस्तर, मस्तर की तावील में हो जाएंगे, तो फिर हम उसका फाइल बनाएंगे। हाँ जी, वाज़ेह हुआ? जी सर। अब देखें मैं इसका तर्जमा करता हूँ दोनों तरह, तो तर्जमा आपने थोड़ा सा गौर करना है। मुस्तहब है वुजू करने वाले के लिए कि वो नियत करे तहारत की और वो इस्तिआब करे। इस्तिआब का मतलब होता है पूरे किसी चीज को पूरा करना, वो पूरा करे सर के मसे को ना यस्तवीबा का यहाँ पर हम मतलब घेर ले, वो घेर ले। वैसे हम इस्तिआब का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी माना में आता है। इस्तिआब करे सर के मसे का, सर का मसे के साथ। और इसका हम अगर उर्दू करें तो इसका मतलब आएगा कि वो घेर ले अपने सर को मसे के साथ, मतलब कि पूरे सर का मसा करें। अब ये तर्जमा है फेल वाला, फेल वाला। अब दूसरा तर्जमा मैं मस्दर वाला करने लगा हूं। मुस्तहब है वुजू करने वाले के लिए तहारत की नियत करना और अपने सर को मसे के साथ घेरना, या अपने सर के मसे का इस्तिआब करना। अब ये करना किसका माना है? नियत करना, इस्तिआब करना, ये किसका माना है? मस्दर। हाँ, वो जो हमने कहा था ना अन की वजह से मस्दर बना, ये उसका माना है। और ये दोनों तर्जमे ठीक हैं। जो आपको ज्यादा सलीस लगे आप वो तर्जमा कर सकते हैं, लेकिन दोनों की पीछे जो रीजन है वो आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, यहाँ तक हमने देखा है, इसको आपने देख लेना है और फिर बाकी बातें इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। तो हमने 2-3 चीजें नई सीखी हैं। एक तो ये फेल लाजिम जो होता है उसका हम यानी मजहूल नहीं पढ़ते आम तौर पे। दूसरा पढ़ा है कि अन की वजह से ये फेल मुजारे मस्तर के माना में हो जाता है, और इसको हम अपनी टर्म में कहते हैं बतावील मस्तर। बतावील मस्तर हो गया, यानी मस्तर की तावील में हो गया। और फिर ये भी तीसरी चीज ये हो गई, ये पिछले क्लास में भी पढ़ी थी कि मातूफ और मातूफ अलैह मिलकर एक चीज बनते हैं और फिर उनके साथ ये पिछली इबारत लगती है। गोया कि यनविया, यस्तौइबा, युरत्तिबा, इन सब का अन की वजह से एक ही हुक्म होगा
اور یہ سارے مصدر کے معنی میں ہو جائیں گے. تو یہ ہماری کلاس مکمل ہوئی. تو اس میں جو 2-3 باتیں کی گئی ہیں اس میں نے وہ جار مجرور کو بھی دہرا دیا ہے, اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ جار مجرور تقریباً ہر لائن میں آ رہا ہے اور آئے گا. یہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. یہ واولز کی طرح ہے, واولز AIOU وغیرہ اس کی طرح. ہاں جی, وہ سوال کوئی یہاں پہ کسی کا؟ ہاں جی, کسی کا؟ سر یہ ان جہاں بھی جب بھی آئے گا وہ مصدر کا معنی بنا لے گا. ہاں جی بالکل. اور پھر یہ ایک بات یہ جو آپ نے کہی کہ ان ینوی طہارہ, تو یہ پورے کا پورا سینٹنس جو ہے یہ بن جاتا ہے مصدر. پورا بن یہ جاتا یہاں تک جو ہے نا سارا یہ ان کا عمل آئے گا. این ینویہ, این یستوعبہ, این یرتبہ, یہ تینوں کیونکہ فعل مضارع ہیں اور ان کا آپس میں عطف آ رہا ہے تو ان ان کے ساتھ لگے گا اور تینوں ہی یہ مصدر کے معنی میں ہو جائیں گے. تو یہاں پر ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ نیت کر لے, کہ وہ گھیر لے, کہ وہ ترتیب سے کرے. ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا ترجمہ مستحب ہے نیت کرنا, سر کو گھیرنا اور ترتیب سے وضو کرنا. یہ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں, ایک فعل والا ہے اور ایک مصدر والا. سر حروف ناصبہ باقیوں کا بھی کچھ اس طرح کا یہ اثر ہوتا ہے؟ ہاں, حروف ناصبہ 4 ہے نا, ان 4 کا الگ الگ اثر ہے. جو مصدر والا ہے جی کیا کہہ رہے ہیں سر 5 نہیں ہے, کون کون ان سے؟ لام کئی, اذن اور لام کئی. وہ لام کے اصل میں کئی ہے, کئی. لام کے الگ سے نہیں ہے, وہ لام کے بعد کئی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اصل 4 ہی ہیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ جو 4 ہیں ان کا جو معنوی اثر ہے وہ الگ الگ ہے. ان کا یہ ہے کہ وہ مصدر بنا دیتا ہے فعل مضارع کو. ٹھیک ہے سر. ہاں جی, اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ اچھا چلیں, یہ نہیں ہے تو ہم کلاس ختم کرتے ہیں, عصر کی نماز کا بھی وقت ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. اچھا میں نے وہ بتایا تو ہے, 1 منٹ سے. اچھا طفیل احمد صاحب, کیا شیخ طفیل؟ جی سر. اللہ آپ کے طفیل ہمیں بھی معاف کر دے. یہاں سے المعانی الناقضہ یہاں سے لے کے جی سر. یہ سارا یہاں تک یہ ایک ہی ہے, یعنی وہ وضو ٹوٹنے والی چیزوں کو بتایا جا رہا ہے. تو آپ نے یہ ساری عبارت کو حل کر کے آنا ہے اگلی دفعہ. ساری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری ہی دھکا لگانا ہے, جتنی ہو سکے میکسیمم ساری کر لیں تو بہت اچھا ہے. جی سر. اوکے انشاءاللہ. تو اگلے ہفتے کی کلاس آپ کے نام ہوگی. جی سر انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.